آج کا ٹاپک ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا گھر اور اپنے رشتے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ جو مناسب نہ سمجھے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں میری ساری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور اللہ کی نشانیوں کے لیے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ آج کے ولاگ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہی، نہ ہی کوئی بے حیائی پھیلا رہی ہوں کہ خاندان، نکاح اور سکون کی بات کروں گی۔ ایسی باتیں جو ہمارے معاشرے میں موجود میاں بیوی کے اس پاک رشتے کو اور بھی زیادہ مضبوط اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو جناب ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا، اور وہ بہنیں جو چینل پہ پہلی مرتبہ آئی ہیں، ویڈیو پہلی مرتبہ واچ کر رہے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرنا ہے، تاکہ جب بھی نئے ولاگ، جب بھی نئی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں تو آپ سب بہنوں تک اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ ولاگ کا آغاز صبح سے ہو رہا ہے، اور بس میں یہاں پہ اپنے روم کی کلیننگ کر رہی تھی۔ آج کے اس ٹاپک کو تو آپ سب بہنیں سمجھ ہی چکی ہوں گی۔ ویڈیو اسپیشلی ان خواتین کے لیے جو چاہتی ہیں کہ ان کا رشتہ مضبوط رہے اور گھر میں سکون بھی برقرار رہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ شادی کے شروع کے دنوں میں نا ہم میاں بیوی ایک دوسرے کو بہت وقت دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی بچے ہو جاتے ہیں نا، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، دن رات ایک ہو کے رہ جاتا ہے، اور عورت خود کو گھر اور بچوں تک محدود کر کے رکھ لیتی ہے، یعنی انہی کی ذمہ داریاں نبھاتی رہتی ہے۔ مصروفیت میں نا سب سے زیادہ جو رشتہ نظر انداز ہم سے ہوتا ہے نا، وہ ہے ہمارے شوہر کا اور بیوی کا، یعنی میاں بیوی کا آپس کا ایک رشتہ۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے شاید بنے ہی نہیں ہے، ہماری جو ایک مینٹیلٹی ہے نا آپس میں وہ بالکل میچ نہیں کرتی ہے، اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ سیپریشن ہو جاتی ہے۔ اسی چیز کو سمجھتے ہوئے نا آپ سب بہنیں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ پاکستان کے اندر طلاق کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ 2 3 بچوں کے بعد خواتین کورٹ جا رہی ہوتی ہیں خلا لینے کے لیے۔ طلاقوں کی ایک ریشو جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے۔ روم صرف سونے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جو آپ کے رشتے کو اور بھی زیادہ مضبوط اور بہتر بناتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں 5 ایسی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کی مدد سے آپ اپنے بیڈ روم کو خوبصورت، آرام دہ اور اپنے اس میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو مزید مضبوط بنا سکتی ہیں۔ ٹپس بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، امید آپ سب بہنوں کے کام آئیں گی، تو ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ سردیوں میں نا ہمارے روم میں کمبل، رضائیاں، سویٹرز اور گرم کپڑوں کی نا بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے ہمارا روم جو ہے نا وہ بہت بھرا بھرا سا لگنے لگ جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ بیڈ روم میں نا صرف ضرورت کی چیزیں رہیں، اضافی کپڑے جو بھی ایکسٹرا ہوں، کوٹس، جیکٹس، سویٹرز، بچوں کی ساکس، یہ ساری چیزیں نا الماری کے اندر لازمی رکھیں۔ پورا گھر ایک سائڈ پہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بیڈ روم کی نا کلیننگ سب سے زیادہ مسٹ ہوتی ہے۔ بستر کو ہمیشہ صاف اور ترتیب میں رکھیں۔ یہ نا بہت ساری بہنیں اس چیز سے اتفاق کریں گی کہ صاف ستھرا جب آپ کو بیڈ روم مل جاتا ہے نا، تو آپ کو بہت ذہنی سکون آتا ہے، اور ذہنی سکون جو ہے نا وہ آپ کے ریلیشن شپ کو اور بھی زیادہ مضبوط بناتا ہے۔ جناب یہاں پہ میں کر رہی تھی اپنے بیڈ روم کی ڈسٹنگ، اور میں نے سوچا کہ جو ہے نا بیڈ روم کی جو یہ ہے ہماری بیڈ شیٹ، اس کو بھی چینج کر لیتی ہوں، اور کوشش کیا کریں کہ موسم کے اکارڈنگ نا بیڈ شیٹس کو بھی جو ہے نا وہ چینج کرتی رہا کریں۔ بیڈ روم کے لیے نا ہمیشہ اچھی اور کمفرٹیبل بیڈ شیٹس کا انتخاب کریں، کیونکہ ہم لوگ نا اکثر بہنیں خوبصورتی پہ بہت زیادہ ہماری ہوتی ہے نا، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارا کمرہ خوبصورت لگے، تو اکثر اوقات نا خوبصورتی کے چکر میں نا ہم بہت انکمفرٹیبل بیڈ شیٹس کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ میرے خیال سے ہمیشہ آپ کے کمفرٹ لیول کو نا سب سے زیادہ پریورٹی بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے جب بھی اپنی بیڈ شیٹ کا انتخاب کرنا ہے تو ایسی بیڈ شیٹ کا انتخاب کرنا ہے جس سے کم نا اب سردیوں میں جس طرح سے میں یہ بچھا رہی ہوں نا، تو اس سے سردی بھی کور ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ نا یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے گی، اور کمفرٹیبل بھی بہت ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی آپ نے اپنے بیڈ روم کے لیے نا موسم کے اکارڈنگ جو بیڈ شیٹ ہے نا اس کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر سردیاں آ جاتی ہیں تو پھر ہمیں کاٹن کی بیڈ شیٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ سردیوں میں ہم لوگ اس طرح کی موٹی بیڈ شیٹ بچھا دیں گے نا، تو اس سے کیا ہوگا کہ ویسے بھی گرمی میں جو ہے نا وہ ایک اضافہ ہونے لگ جاتا ہے، اور روم بھی جو ہے نا وہ بھرا بھرا سا لگتا ہے۔ تو اپنے موسم کے اکارڈنگ جو ہے نا اپنے روم کی سیٹنگ کو مد نظر جو ہے نا وہ رکھا کریں۔ اور بس یہاں پہ میں نے جو ہے موٹی سی بیڈ شیٹ اپنی جو ہے، یہ اس کو کیا بولیں گے اسٹف، یہ جو میں نے بچھایا مجھے نہیں پتا ہے، کمبل ٹائپ جو اسٹف ہوتا ہے، ہلکا سا کمفرٹر جس طرح سے ہوتا ہے، بس اسی طرح کا اسٹف ہے، اور یہ مجھے میری خالہ نے میری شادی سے پہلے میرے برتھ ڈے پہ گفٹ دی تھی، اور بس اس کو میں نے بچھا دیا۔ اور ساتھ ہی نا کوشش کیا کریں کہ ایکسٹرا جو تکیے ہیں نا بیڈ روم میں رکھنے سے گریز کیا کریں۔ آپ کے پاس اگر گھر میں باقی روم ہے نا، تو یہ باقی کے جو تکیے ہیں نا، یہ بچوں کے حصے کے جو تکیے ہیں نا وہ سارے اٹھا کے بچوں کے کمروں میں رکھیں۔ اپنے روم کے اندر، اپنے بیڈ روم کے اندر ہمیشہ صرف 2 تکیے جو کہ دیکھنے میں بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے نا ایک صاف اور منظم کمرے کو بھی جو ہے نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں، ترتیب میں ہے کمرہ، تو بس آپ نے جو ہے نا ہمیشہ 2 تکیے اس کے اوپر رکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسٹرا گول تکیے، کوشنز وغیرہ آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ سرہاندو جو ہے نا وہ کبھی بھی ہمارے بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ہیں۔
दूसरी बात, अब सब बहनों को बोलूँगी अपने बेडरूम को खूबसूरत बनाने के लिए कोशिश करें कि कालीन या कारपेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपनी जेब के अकॉर्डिंग अगर आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं तो कालीन वगैरह बिछा लें या फिर कारपेट वगैरह डाल लें। इससे रूम जो है ना आपका नीट एंड क्लीन भी लगता है और इसकी सफाई भी आसान होती है और साथ ही साथ जो है ना दिखने में भी ये खूबसूरत लगता है। सर्दियों के मौसम में आप इसको बिछा दें, गर्मियों में कई जो है ना घरों में निकालना उठाना जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप इसकी सफाई का ख़्याल रखते हैं ना तो बिल्कुल भी मसला नहीं होता है। आप बस इसको कालीन बिछा लें या कारपेट वगैरह बिछा के ना आप अपने रूम को मज़ीद खूबसूरत भी बना सकते हैं, कंफर्टेबल भी बना सकते हैं। स्पेशली ना सर्दियों के अंदर आप कारपेट या फिर कालीन का इंतखाब जो है ना वो ज़रूर रखें। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या आपके लिए लेना मुश्किल है या आपको इससे एलर्जी है, तो आपको एक बात बोलूँगी कि आजकल फ्लोर शीट्स बहुत अच्छी आ चुकी हैं मार्केट में, बहुत अच्छी क्वालिटी की भी हैं, बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत कलर्स में भी हैं। तो आप चाहें तो अपने फ्लोर को कवर करने के लिए फ्लोर शीट्स का इंतखाब भी कर सकते हैं। उससे भी बेडरूम की लुक जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाती है और साथ ही साथ वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसके साथ साथ आपको बोलूँगी कि बेडरूम की क्लीनिंग का स्पेशली ध्यान रखें। अगर आपके बेडरूम में कहीं कुछ जाले वगैरह हैं तो उनकी सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि वैसे भी ना घर में बेबरकती का बायस बनते हैं। यहाँ पे मैं भी अपने बेडरूम में मौजूद जाले वगैरह ही साफ़ कर रही थी और इसको ना लटकने ना दें। लटकने से मुराद ये है कि आप ना इसको इग्नोर ना करें, इसको डिले ना करें। जैसे ही आपको कहीं पे लगे हुए जाले नज़र आएँ और हकीकत ये है कि मैं अभी रूम क्लीनिंग कर ही रही थी ना, तो मुझे भी ये नज़र आए, तो मैंने सोचा कि मैं भी जो है ना इनको फटाफट से क्लीन भी कर लेती हूँ और आपको भी एक याद दहानी दिला देती हूँ कि स्पेशली गुज़रगाहों में, अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने स्टोर रूम में जालों को जो है ना वो बिल्कुल भी ना लगने दें। आप इनकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कोशिश करें कि झाड़ू वगैरह से ना जितनी जल्दी हो सके इनका जो है वो सफाया। और टिप आप सब बहनों के साथ शेयर करूँगी कि अपने बेडरूम को ना खूबसूरत और पुरसकून बनाने के लिए ना इस तरह की हल्की लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। बहुत ही चीप रेट में, अब तो $1 शॉप से भी आपको इस तरह की लाइट्स बहुत आसानी से मिल जाती हैं। ये मेरे ख्याल से आपकी गुफ्तगू को भी बेहतर बनाती है आपके पार्टनर के साथ, और साथ ही साथ जो है ना एक पुरसकून माहौल पैदा करती है जिससे आपकी नींद भी कंफर्टेबल रहती है। तो आप इसका इंतखाब ज़रूर करें, बजाय इसके कि आप बड़े बड़े बल्ब और बड़ी बड़ी लाइट्स का इंतखाब करें। तो ये भी एक छोटी सी टिप है आपके बेडरूम के माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँ कि इस तरह का स्नैक बॉक्स जो है ना वो अपना ज़रूर बना के रखें, स्पेशली बेडरूम के अंदर। अक्सर औकात ना घरों में ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना वो कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं, यानी उनकी नज़र में कुछ चीज़ आ जाती है ना तो फिर खा पी के ना अक्सर ख़त्म कर देते हैं। तो एक स्नैक बॉक्स ना आप अपने और अपने हस्बैंड के लिए बना के ज़रूर रखें, जो सिर्फ आप उस टाइम पे निकालें और खाएं और इस्तेमाल करें जब आप अपने हस्बैंड के साथ कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक घर से रिलेटेड, अपने बच्चों से रिलेटेड, उनके मुस्तकबिल से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी जो है ना आपके लिए एक कंफर्टेबल और पुरसकून एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। साथ ही साथ आपको बोलूँगी कि नेचुरल जो चीज़ें होती हैं ना वो आपकी ज़िंदगी में ना बड़ा एक खूबसूरत इम्पैक्ट लेके आती हैं। तो कोशिश करें नेचर से करीब रहें। अक्सर औकात ना मैं क्या करती हूँ कि इस तरह की पेटल्स वगैरह जो है मंगवा लेती हूँ और बेडरूम के साइड टेबल्स पे लगा देती हूँ। इससे होता है कि आपका रूम भी जो है ना वो एक खुशगवार माहौल एक दे रहा होता है, एक अच्छा तासुर लग रहा होता है, और साथ ही साथ ना ये ना आपके पार्टनर की इम्पोर्टेंस को भी शो करता है कि आपकी ज़िंदगी में जो शख्स मौजूद है ना वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। रूम को इस तरह की पत्तियों से अक्सर औकात डेकोरेट कर लिया करिए। इतनी महंगी नहीं मिलती हैं, अगर हम लोग पैसों में इनकी बात करें तो शायद 200 या 300 में आपको काफ़ी सारी पेटल्स मिल जाती हैं, जिनको आप अपने बेडरूम के साइड टेबल्स पे लगा सकते हैं। एक से एक तो कमरे के जो अंदर एक हमारे यहाँ ना अक्सर जो बंद घर होते हैं इनमें एक बैड स्मेल सी भी हो जाती है, और साथ ही साथ जो है ना बिस्तरों की स्मेल भी अक्सर औकात आने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इनसे हट के ना जब आप इस तरह की चीज़ों का इंतखाब करते हैं ना, परफ्यूम्स और सेंट्स वगैरह से हट के ना, तो ये बहुत ही नेचुरल लगता है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। घरों में ना ख़वातीन इत्र या फिर तेज़ परफ्यूम जो है ना वो रूम्स में लगा देती हैं, तो मुझे लगता है कि वो उल्टा ना सर में दर्द करने लग जाता है। इस तरह की माइल्ड और हल्की जो खुशबू होती है ना वो आपके जहन को भी बहुत ज़्यादा पुरसकून बनाती है। साथ ही साथ ना कैंडल्स बड़ी आसानी से मिल जाती हैं बाज़ार के अंदर। आप चाहें तो अपने रूम को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, इसके एनवायरनमेंट को बहुत और भी ज़्यादा अच्छा रखने के लिए ना कैंडल्स का इंतखाब भी आप कर सकते हैं, कैंडल्स भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास लाइट्स वगैरह रूम में नहीं है तो सस्ती और बेहतरीन चीज़ है कि आप अपने रूम में ना कैंडल लगा लें। ये भी बहुत देखने में खूबसूरत लगती है और एक नेचुरल सी लुक देती है, और साथ ही साथ जो है ना वो सस्ती भी है। तो ये है कि आप अपने बेडरूम को ना अपनी जेब के अकॉर्डिंग, अपनी जो है ना मर्ज़ी की चॉइस के अकॉर्डिंग जो है ना अपने रूम को अच्छा और ख़ूबसूरत बना सकते हैं।
एक और बात आप सब बहनों को बोलूँगी कि अपने और अपने ख़ावंद के रिश्ते को ना मज़बूत बनाने के लिए ना मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत कम कर दें। अक्सर औक़ात ना हम बहनों की आदत होती है ना कि इधर ख़ावंद बैठ के ना हमसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हमसे कोई बात कर रहे हैं, तो हम लोग है ना अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी वालदा के साथ, अपनी बहनों के साथ ना मोबाइल पे लगे हुए होते हैं, या फिर टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे होते हैं, या फिर फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हस्बैंड को ना बहुत बुरा फ़ील होता है। वो ये समझते हैं कि शायद मेरी किसी बात की अहमियत नहीं है या मेरी अहमियत नहीं है। तो कोशिश करें कि जब भी ना आप और आपके हस्बैंड बैठ कर ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं या किसी भी बारे में बात कर रहे हैं ना, तो अपने मोबाइल फ़ोन को ना थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगा दें, साइड पे रख दें। क्योंकि मुझे लगता है कि रिलेशनशिप के दरमियान जो गुफ्तगू होती है ना, वो आपके रिलेशनशिप को ना और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है। कोशिश करें कि शौहर की बात को ना अहमियत दें, उनकी बात को गौर से सुनें और साथ ही साथ ना उनकी बात का रिस्पॉन्स करें। ये छोटी-छोटी सी आदतें यकीन जानिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगी ना, तो आपका जो रिलेशनशिप है ना अपने शौहर के साथ पहले से भी ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा। वही रिलेशनशिप जो बच्चों के बाद ना आपको कहीं टूटता हुआ, कमज़ोर या ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा होता है। मुझे लगता है ना कि अगर औरत खुद को अहम समझे ना, अपने रिश्ते को वक़्त दे और साथ ही साथ ना रिश्तों की अहमियत को समझे, अपने बच्चों की वैल्यू अपनी जगह है, अपने आपके माँ-बाप की वैल्यू अपनी जगह है, सास-ससुर की अपनी जगह है, लेकिन ख़ावंद का जो मकाम है ना, आप सब बहनें बहुत बेहतर जानती हैं कि वो अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा रख दिया है। और इसके साथ-साथ ना मैं आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी कि देखें, मुझे ये भी लगता है कि मर्द के दिल तक पहुँचने का जो एक रास्ता है ना, वो उसके मैदे से गुज़रता है। शायद ही कोई ऐसा मर्द हो जिसको खाना अच्छा खाना जो है वो पसंद ना हो। हम सब बहनें बहुत बेहतर जानती हैं कि हमारे शौहर की पसंद और नापसंद क्या है, स्पेशली खाने के मामले में। तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें जो आपके शौहर को पसंद है सीख लें। अक्सर बहनें कहती हैं ना कि मुझे मेरे शौहर को फ़लाँ चीज़ पसंद है, या फ़लाँ के हाथ की पसंद है, या फिर अम्मी के हाथ की पसंद है, या फिर बहनों के हाथ की पसंद है। तो ये वो चीज़ें होती हैं खाने-पीने की ना, जो आपके शौहर के दिल तक पहुँचती हैं, आपको पहुँचाती हैं। तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें अगर आपको नहीं बनाना आती हैं ना, तो सीख लें। लेकिन शौहर को ना हमेशा अच्छा खाना बना के दें और इम्पोर्टेंस दें खाने-पीने के मामले में ना, उनके खाने-पीने का जो है वो बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। ये एक छोटी-सी टिप है जो आपके रिलेशनशिप को ना आपके शौहर के साथ मज़ीद बेहतर करने में जो है वो हेल्पफुल साबित होगी। आजकल हम लोग देखते हैं ना कि शौहर हज़रात बहुत ज़्यादा, बल्कि मर्द हज़रात भी ना बहुत ज़्यादा बाहर के खानों के आदी हो चुके हैं। उनको वो जायका घर में मिलता ही नहीं है। फिर होटलों पे रश लगा रहता है, और फिर बीवियाँ शिकायतें कर रही होती हैं कि दोस्तों के साथ जाके खा पी आते हैं, मुझे पूछते नहीं हैं, मुझे बुलाते नहीं। तो ये सारी चीज़ें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप खुद जो है ना वो उनको इस तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल दें, उनको खाने पीने में उनको प्रोटोकॉल दें, और साथ ही साथ ना उनकी पसंद और नापसंद खाने पीने में जो है ना उसका भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। इससे ना आपका रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा मज़बूत होगा, और आपकी जो अहमियत है ना वो भी आपके शौहर के दिल में पहले से ज़्यादा होगी। आखिर में ना मैं सबको इतना ही बोलना चाहूँगी कि देखें, इस्लाम ने ना मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को ना सुकून, मोहब्बत और रहमत का ज़रिया बनाया है। औरत जब अपनी समझदारी से घर को चलाती है ना, तो उसका फ़ायदा आपको भी होता है, आपके शौहर को भी, आपके बच्चों को भी। क्योंकि घर को उजड़ने में ना यूँ चुटकियाँ और मिनटों लगते हैं, कि बसाने के लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ती है। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।